Thank you. Good afternoon, everyone. So today we will be discussing that what are the types of media. Any advertisement is passed through a media to the customers. Advertisement आपने बना ली है, कस्टमर्स आपके रेडी हैं, टारगेट ऑडियंस आपने ढूंढ ली है, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट आप अपने कस्टमर्स तक या प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स का मतलब होता है जो आगे चल के आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचाएंगे? सो दैट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया. Media would help you to reach to your customers, and today we will discuss that what are the different types of media we can use to reach to our customers. Then we will discuss that what are their pros and cons, advantages and disadvantages. Then we will be discussing about the media scheduling, why it is important to decide a time and the place where your advertisement would be placed. And then we will be discussing the advertising agents. Okay, so this is the scope of today's lecture, and without wasting further time, let's start with the lecture. I hope my screen is visible to everyone. Okay, so now here we have the types and the classification of advertising media that can be grouped under the print media. Firstly, we have the print media where something would be written or some picture would be placed so that you can communicate with people. Okay, so it would be there in the print form. This is one classification. Firstly, I'll be telling you the classification, and then we'll be talking about the types under those classifications. So first classification, the broad category is print media. The second one is electronic media. So every electronic device would come under this particular class. So we have the television, we have laptop, computers, internet, radio, your mobile phones, everything would come under the electronic media. The third type of media is the outdoor media. Outdoor media, when we see some wall paintings, we have posters, pamphlets, etc. पैम्फलेट अगर आपके घर पर देखे गए हैं तो प्रिंट मीडिया में आ जाएंगे. अगर बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे लगे हुए हैं, so they would come under the outdoor media. And the last thing is covert. Covert advertisements are when something is placed between a television show or movie. एडवर्टीजमेंट वैसे नहीं की जा रही है, लेकिन कोई सेलिब्रिटी अपनी मूवी में यूज कर रहा है या फिर टेलीविजन शो में यूज कर रहा है या उसके बारे में प्रचार कर रहा है. सो दैट वुड बी नोन एज द कोवर्ट एडवर्टीजमेंट्स. सो वी हैव फोर कैटेगरीज. First is the print media, the second one is the electronic media, the third one is the outdoor media, and the last one is the covert advertisements. These four broad categories are there, broad classes are there. Then we have the types of advertising media under those categories, under those classes. So we have newspapers, they would come under the print media. Then we have the magazines and trade journals, they would also come under the print media. Then we have radio, television, it would come under the electronic media. Film advertising, it would come under the covert media. Outdoor advertisement, outdoor media. Transit advertisement, outdoor media. Direct mail advertising, that would come under the print media. Advertising specialities और gift advertising, अब वो गिफ्ट किस तरीके से दिया जा रहा है, कोई ऑनलाइन गिफ्ट है या ऑफलाइन गिफ्ट है, इट वुड डिपेंड अपॉन द print or the electronic media. Then we have the window display. Window display would come under, it is neither print nor out, it would come under the indoor media. इन चार कैटेगरी में कहीं फिट नहीं होता. जैसे मैंने कोई शॉप है मेरी, उसके बाहर डिस्प्ले कर दिया, तो उसको आउटडोर मीडिया अगर बाहर कर रहे हैं या फिर अंदर ही शोरूम के
वो लगा के ग्लासेस लगा के अगर मैंने कुछ चीजें शो कर रखी हैं तो दैट वुड कम अंडर द इंडोर मीडिया। विंडो डिस्प्ले हो गया, इंटरनेट, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रीच टू आवर कस्टमर्स। Now we'll discuss these media one by one. पीपीटी का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। Okay, here we have the newspapers. Of all the sources of media, the newspaper was considered to be the backbone of advertising program, and it remains the most powerful message carrier even today. Newspapers, they were being introduced much before the electronic means. So in the early times, we used to have only the newspapers as the source of advertising. So they are considered to be the backbone of advertising program because they have been there from the years. And even today, newspapers are considered to be a powerful message carrier. Why? Because still there are many people, mostly the old generation, they are more inclined towards reading the newspapers rather than surfing on the mobile phone or watching the television. So that is why newspapers are still there in the trend, and they can be used as an effective medium of advertising. Here we have given some merits and demerits of using the newspapers. Let's have a look over them. First is, it can give wide coverage. A newspaper can be a national newspaper or a regional newspaper. So it gives you a wide coverage in comparison to other print media. Because if you want to send the pamphlets or you need to have direct mail, so आप एक limited area में भेज सकते हैं. लेकिन अगर आप एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में करवाते हैं तो न्यूज़पेपर जो है एक नेशनल न्यूज़पेपर हो सकता है that can have a wide coverage. So this is one merit. Second is public response is quicker. That means जैसे ही न्यूज़पेपर आज के न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट आए तो आज के आज ही ज्यादातर लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले के न्यूज़पेपर या 2-3 दिन पुराने न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता। तो अगर आपको कोई ऐसी एडवर्टीजमेंट देनी है जो आप चाहते हैं कि आज के आज लोग पढ़ लें, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर की एक एक्सपायरी डेट होती है, एक दिन के लिए होता है। इट इंश्योर्स द रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप रेगुलर रह सकते हैं, जैसे हर 15 डेज बाद आपने अपनी ऐड दे दी या हर हफ्ते अपनी ऐड दे दी, तो यू कैन बी मोर रेगुलर एज कंपेयर टू अदर मीडिया, बिकॉज न्यूज़पेपर तो जाएगा ही जाएगा। एडवर्टीजमेंट्स कैन बी इंसर्टेड और चेंज्ड क्विकली। सपोज कोई एडवर्टीजमेंट मैंने आज दी, उसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं कल की जब कल न्यूज़पेपर आएगा उसमें एडवर्टीजमेंट अगर देना चाहती हूँ तो वो मैं चेंज कर सकती हूँ इजीली, क्योंकि न्यूज़पेपर की एक्सपायरी डेट ओनली 1 डे की होती है। तो आज वाला लोग भूल जाएंगे, कल अगर नए कंटेंट के साथ आएगा तो वो याद रहेगा। तो इसीलिए जल्दी से क्विकली चेंज कर सकते हैं या कुछ भी इंसर्ट उसमें जल्दी किया जा सकता है। एंड इट इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इट इज कॉस्ट सेवी। आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, तो इट इज़ इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इज इट हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ। डीमेरिट्स क्या है, जैसे मैंने आपको मेरिट्स में भी बताया, एक डीमेरिट भी है कि एक दिन की एक्सपायरी डेट होती है। तो आज लोगों ने देखा, कल कोई नहीं देखेगा उसे, आपको दोबारा एडवर्टीजमेंट देनी पड़ेगी। तो ये एक डीमेरिट भी है।
There is a possibility of wastage in circulation because it is not restricted to certain groups of readers. यानी कभी कभी हम टारगेट अच्छे से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वही न्यूज़पेपर घर के बड़े बूढ़े देखते हैं, वही न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्टेज ज़्यादा होती है हमारे रिसोर्सेज की। थर्ड डीमेरिट है, people read newspapers mainly for the news and take only a casual glance at the advertisement, so it may not serve the purpose. So basically people have newspapers just to have a look over the news. बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट को पढ़ते भी हैं, थोड़ा सा देखते हैं और उसको पलट देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम आती है न्यूज़पेपर्स में। अदरवाइज यू कैन यूज न्यूज़पेपर एज अ मीडियम for your advertisement. Any question from the newspaper? Otherwise, we'll move towards the next medium. सस्पेंस एड आपकी इमोशनल अपील में आएगी। हाँ, आप डॉक्टर रुचि गुप्ता की बुक से कर सकते हैं। पीपीटी क्लियर नहीं आ रहे, मैं थोड़ी जूम इन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट मीडिया के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, मैगजीन्स एंड ट्रेड जर्नल्स। अब ये भी एक प्रिंट मीडिया का पार्ट है, मैगजीन्स एंड ट्रेड जर्नल्स। मैगजीन्स आपने देखी होंगी, अब आजकल तो इतना प्रचलन नहीं है मैगजीन्स का, लेकिन पहले मैगजीन्स बहुत आती थी और उसमें भी एडवर्टीजमेंट्स आती थी। अगर आपने मैगजीन ली है स्टडी से रिलेटेड तो उसमें बुक्स वगैरह की एडवर्टीजमेंट आएगी, कोर्सेज की एडवर्टीजमेंट आएगी। अगर आपने फैशन रिलेटेड मैगजीन परचेज की है तो उसमें कॉस्मेटिक्स और कपड़ों की ऐड आएगी। तो मैगजीन्स में भी उसके नेचर के हिसाब से एडवर्टीजमेंट की जा सकती है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। मैगजीन्स कैन बी स्पेशल एंड जनरल, यानी कुछ तो जनरल मैगजीन हो सकती हैं जिसमें हर तरीके का कंटेंट आता है, और कुछ होते हैं स्पेशल मैगजीन जो एक तरीके के टारगेट ग्रुप के लिए ही होती है। इफ इट इज अ स्पेशल मैगजीन इट विल अपील टू द स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक मैगजीन है तो वो एक अलग तरीके की क्लास के लिए, यानी अलग तरीके के लोगों के लिए ही बनी है। फॉर एग्जाम्पल, एन एडवर्टीजमेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर्स टुडे। तो जो बंदा कंप्यूटर्स टुडे नाम की मैगजीन ले रहा है, यानी ही वुड बी इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर्स, तो उसमें एडवर्टीजमेंट किसकी की जाएगी? कंप्यूटर की, लैपटॉप की, प्रिंटर की, तो उससे रिलेटेड ही एडवर्टीजमेंट्स की जाएंगी। कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। मैगजीन्स हैव लॉन्गर लाइफ देन द न्यूज़पेपर्स। मेरिट क्या है इसका कि मैगजीन की लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे मंथली मैगजीन्स होती हैं, क्वार्टरली मैगजीन्स होती हैं, तो वो लोग फिर भी कुछ ज़्यादा दिनों तक पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर लोग ज़्यादातर सिर्फ उसी दिन पढ़ते हैं और फिर उसको रद्दी में डाल देते हैं। सो दिस इज़ वन मेरिट।
नेक्स्ट है मैगजीन्स एंजॉय द नेशनल सर्कुलेशन। कुछ मैगजीन्स जो होती हैं वो नेशनल मैगजीन्स होती हैं और वो पूरे कंट्री में सर्कुलेट होती हैं। थर्ड है the high quality printing gives greater appeal and offers a more stable impact on the mind. आपने देखा होगा मैगजीन की प्रिंट क्वालिटी अच्छी होती है एज कंपेयर टू द न्यूज़पेपर्स। इट हैज गुड कलर्स, good paper design, good thickness of the paper, and the graphics are also better there. So जो उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से माइंड पे ज़्यादा अच्छे से इम्पैक्ट जाता है। जितनी अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपके माइंड पे इम्पैक्ट डालेगी। सो ये मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। इट इज़ कॉस्टलियर देन द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। अब जब इतना अच्छा पेपर होगा, कलर होंगे, पेजेस होंगे, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट से महंगी होती है मैगजीन वाली। एज मैगजीन्स आर पब्लिश्ड वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, क्वार्टरली, द advertisers cannot communicate their messages as frequently as in other media। यानी मैगजीन जो है एक अगर वीकली है, क्वार्टरली है, मंथली है, तो वो एक बार आ गई तो अब वो नेक्स्ट जो उसका सब्सक्रिप्शन है, नेक्स्ट उसका जो वर्जन है, इशू है, वो बाद में ही आएगा, क्वार्टर के बाद आएगा, मंथ के बाद आएगा। यानी आप उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते। न्यूज़पेपर में तो आप रोज ऐड दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको वेट करना पड़ेगा, तो ये भी एक डीमेरिट है। आई होप merits and demerits of magazines are clear. Okay, I'm not able to see any question from this part. अब हम next part पर चलते हैं. That is the next type of media, radio advertisements. थोड़ा zoom in कर देती हूँ इसमें. ये लीजिए. I hope it is clear. This media can even appeal to illiterate people. यानी अभी हमने सिर्फ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की बात की थी, और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर सिर्फ वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है। यानी चाहे हिंदी न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश न्यूज़पेपर हो, इट कैन ओनली सर्व द पीपल हु आर लिटरेट। लेकिन रेडियो एडवर्टीजमेंट में ऐसा नहीं है। दिस मीडिया कैन be there for the illiterate people as well. The advertisements can be repeated in different programs to communicate with different types of the people. यानी कुछ लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे रेडियो सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरे टाइम पर। तो यहाँ पर एडवर्टाइजर ये इंश्योर कर सकता है कि बार बार उनकी एडवर्टीजमेंट को रिपीट किया जाए, ताकि वो हर तरीके के कस्टमर तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अनाउंसमेंट्स इन बिटवीन मूवी सॉन्ग्स आर पॉपुलर। यानी जब आपने देखा होगा कोई शो चल रहा है रेडियो पे, तो सॉन्ग्स के बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट्स, अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। अब अगर कोई शो पुराने गानों का आ रहा है, तो हो सकता है वो ओल्ड एज पीपल के लिए हो,
तो आप उनके तरीके की एडवर्टीजमेंट उस शो के दौरान दे सकते हैं। कुछ प्राइम टाइम के शोज होते हैं जो ऑफिस जाने वाले लोग जाते टाइम या आते टाइम सुनते हैं रेडियो, तो उनसे रिलेटेड एडवर्टीजमेंट उसमें दी जा सकती है। सो ये है रेडियो एडवर्टीजमेंट्स। इनके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। दिस मीडिया इज इकोनॉमिकल, यानी अगर औरों से कंपेयर करें तो इसमें कॉस्ट कम आती है। A person can listen to the radio regardless of his or her activities, and so the potential audience of radio is much larger as compared to the other media. यहाँ पर रेडियो का क्या फ़ायदा है कि लोग और कुछ एक्टिविटी करते हुए, पढ़ते हुए, ड्राइव करते हुए, कुछ और काम करते हुए रेडियो सुन सकते हैं, जो कि और किसी मीडिया में नहीं हो सकता। तो इसीलिए पेनिट्रेशन ज़्यादा हो सकता है। Now let's talk about the demerits. Radio visualizes only through the words, music and sound effects. The products that need visual display or demonstration cannot be advertised through this medium. यानी जिस प्रोडक्ट में, give me a minute. Yeah, sorry guys. As we were discussing about the demerits, जिस प्रोडक्ट को अगर विजुअलाइजेशन की नीड है, विजुअलाइजेशन यानी वो दिखाना चाहिए लोगों को ताकि वो खरीद सकें, तो इस तरीके के प्रोडक्ट के लिए रेडियो एडवर्टीजमेंट इज नॉट सुइटेबल, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ वर्ड्स, म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के थ्रू ही आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो इसीलिए यू हैव टू make it sure that the product doesn't need the visualization, otherwise you would not be able to communicate clearly to your customers. Next, this media has low memory value because people remember the things they see longer than the things they hear. यानी आप कोई चीज़ सुनते हैं और आप कोई चीज़ देखते हैं, तो जो चीज़ सुनी जाती है उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, मेमोरी वैल्यू थोड़ी कम होती है, और जिस चीज़ को आप देखते हैं उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब सिर्फ आपने कुछ चीज़ को सुना है तो हो सकता है कि इसकी मेमोरी वैल्यू ज़्यादा ना रहे, आप ज़्यादा दिन तक उसको रिकॉल ना कर पाए। थर्ड है, रिपीटेड मैसेजेस आर बोरिंग. समटाइम्स the same advertisement that has been repeated every 5 minutes on the radio can make you bored, because आप एक ही चीज़ को बार बार सुनना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि रेडियो वैसे भी थोड़ा बोरिंग होता है. You just switch to the radio just to listen the music and the songs and not the advertisements. So these advertisements are sometimes boring. Next, radio advertisements have very short life and may be missed by many listeners. Radio penetration इतना नहीं है मार्केट में. At the same time, रेडियो लोग सिर्फ ड्राइव करते वक्त, गाड़ी में कहीं आते जाते वक्त ही सुनते हैं, और उसमें भी अब तो बहुत ऑप्शन आ गए हैं. यू कैन प्ले द यूट्यूब, यू कैन यूज़ योर पेन ड्राइव फॉर सॉन्ग्स. तो इसका पेनिट्रेशन कम होता जा रहा है और उसकी बहुत शॉर्ट लाइफ भी होती है. जब आप कोई चीज़ सुनते हैं तो उसकी शॉर्ट लाइफ होती है, और बहुत सारी
लोग जो है उसे मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग रेडियो नहीं सुनते हैं या सिर्फ एक ही टाइम पे सुनते हैं, या फिर चला हुआ होता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये डीमेरिट्स है रेडियो एडवर्टीजमेंट के। Now we'll be talking about the most famous media of advertising, that is television advertisements. In India, the television was first commissioned in 1959, and the commercial telecasting started only in 1976 and the color transmission in 1982. This is specialized media as it provides a scientific synchronization of sound, light, motion, color, and immediacy that no other medium does except film। यानी टेलीविजन एक ऐसा मीडियम है that has everything, यानी यहाँ पर साउंड भी है, लाइट भी है, मोशन भी है, कलर भी है और इमीडिएसी भी है, यानी कुछ चीज़ें लाइव भी आ सकती हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स भी है। तो यानी इस तरीके की चीज़ किसी और मीडियम पे पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। Now let's talk about its merits and demerits. Here we have given some merits. This medium is an ideal medium to show the products, its uses, and the products can also be demonstrated. That means यहाँ पर product आपको दिखाया जा सकता है, उसके uses easily बताए जा सकते हैं, और प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट यानी वो कैसे यूज होगा, कैसे काम करेगा, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा सकता है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट, द टेलीविजन प्रेजेंट्स थिंग्स एंड इवेंट्स एज दे हैपन, एंड सो एडवर्टीजमेंट्स आर मोर क्रिएटिव एंड परसुएसिव। यानी टेलीविजन जो है वो कोई भी घटना को एज इट इज़ दिखाने की क्षमता रखता है, एंड इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स जो होती हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। उसमें जैसे हमने कल पढ़ा था कि अलग अलग कॉपीज़ यूज़ की जाती हैं, कोई स्टोरी बनाई जा सकती है, किसी सेलिब्रिटी को यूज़ किया जा सकता है, जो रेडियो में या प्रिंट में इतना पॉसिबल नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई द एडवर्टीजमेंट्स आर मोर क्रिएटिव एंड परसुएसिव। नेक्स्ट, मैसेज एंड जियोग्राफिकल सेलेक्टिविटी इज पॉसिबल। यानी कहीं पे भी मैसेज जो हमें देना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर कोई रीजनल चैनल है तो वहाँ पे उसकी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है, अगर कोई नेशनल टेलीविज़न है चैनल है तो आप उस पर वहाँ की नेशनल लैंग्वेज में दे सकते हैं, और इंटरनेशनल में भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में देना है या कैसे मैसेज देना है। Similarly, geographical selectivity is possible, यानी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस एरिया में ये दिखाया जाना चाहिए और किस में नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ रीजनल चैनल्स होते हैं, वो ज़्यादातर उसी एरिया में चैनल आते हैं और उसी एरिया की एडवर्टीजमेंट जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है। डीमेरिट्स क्या है? It is costlier, and so this medium is out of the reach of small and medium-sized firms. यानी ये थोड़ा महंगा है as compared to radio, magazine and a newspaper. Television is bit costlier. तो जो small and medium-sized firms हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड है कमर्शियल मैसेजेस हैव द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। यानी जो
आपको टेलीविजन पर दिखाई देती हैं वो थोड़ी देर में ही हट जाती हैं, जो भी एडवर्टीजमेंट्स वगैरह होती हैं, तो उसका भी एक शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ज़्यादा देर तक लोग याद नहीं रखते हैं अगर वो बार बार रिपीट नहीं की जाती। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं टेलीविजन एडवर्टीजमेंट के। एंड नाउ लेट मी कम बैक टू योर स्क्रीन फॉर द क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो या टेलीविजन में से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो। यस, एडा मॉडल है सिलेबस में। सस्पेंस में इमोशनल अपील कैसे होगा? सस्पेंस का मतलब है कि आप किसी चीज को, लोगों के इमोशंस को यूज कर रहे हैं। फियर आता है, थ्रिल आता है, तो जब लोग थ्रिल हो जाते हैं तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इमोशन। इसीलिए ये इमोशनल अपील है जब आप किसी एडवर्टीजमेंट में सस्पेंस दिखाते हैं। रेशनल कहाँ हुआ? रेशनल में तो आप रीजन बताते हो कि आपको ये खरीदना है। रेडियो इकोनॉमिकल है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि एज कंपेयर टू न्यूज़पेपर। Radio can be compared to the television, it is cheaper. एग्जाम में जितना पूछा जाएगा उतना ही एक्सप्लेन करना है, ज़रूरी नहीं है कि सारे पूछे जाएंगे। हो सकता है सिर्फ प्रिंट मीडिया पूछ लिया जाए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक पूछ लिया जाए। मेरिट्स, डीमेरिट्स, एग्जाम्पल सब लिखने हैं। प्रिंट मीडिया मैंने बताया तो जिसमें कोई चीज़ प्रिंट होकर आती है, उसमें न्यूज़पेपर भी हो सकता है, पैम्फलेट्स भी हो सकते हैं, मैगजीन्स भी हो सकती हैं, बुक्स भी हो सकती है। सिलेबस एक बार पढ़ लो आप, उसमें एडा मॉडल भी लिखा है, डैगमार मॉडल भी लिखा है। इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है, यस। ह्यूमर जो है वो इमोशनल अपील में आएगा, क्योंकि ह्यूमर भी एक इमोशन है, हंसना भी एक इमोशन है। किसी चीज़ पे आप हंसते हैं तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो मैं आपको क्लास में करा रही हूँ वो सारे टॉपिक करने हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिल्म एडवर्टाइजिंग। Business units prepare short films or slides which are shown before the start of a regular movie show or during the intermission. Along with the film, there is a running commentary on the features, uses and superiority of product. यानी फिल्म एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि जब आप मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले कुछ एडवर्टीजमेंट्स चल रही होती,
या फिर इंटरमिशन में आती हैं तो उनको फिल्म एडवर्टीजमेंट का नाम दिया जाता है, और उसमें थोड़ी कमेंट्री पीछे से आवाज़ भी आती है कि इसके ये फ़ायदे हैं या ये फ़ायदे हैं। मेरिट्स: the advertising message lasts longer through this media. Product demonstration is explicitly done, impressive and early convincing. Moreover, it has a dramatic impact on the viewers. यानी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि आप स्पेशली वहाँ मूवी देखने गए हैं। उसका मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और नहीं है, आप उसी को सबसे ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा देर तक आपके माइंड में इम्पैक्ट बनाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टेलीविज़न एडवर्टीजमेंट। उसमें प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन भी अच्छे से किया जा सकता है और वो थोड़ी सी ज़्यादा कन्विंसिंग भी होती हैं। मोरओवर इट हैज़ अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट। ड्रामेटिक इम्पैक्ट का मतलब है कि यूजुअली हम मूवी देखने गए हैं तो मूवी से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पर। द सिनेमा ऑडियंस कंसिस्ट्स ऑफ ऑल सेगमेंट of the society, so it affords a high degree of selection and flexibility. यानी जब सिनेमा में ऑडियंस आती है तो वो हर तरीके के सेगमेंट होता है, ठीक है। सो इट अफोर्ड्स अ हाई डिग्री ऑफ सिलेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी वहाँ पर आप अलग अलग सेगमेंट को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं क्योंकि मिक्स्ड सेगमेंट है आपके पास और आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरीके के लोग आए हैं तो आपको उन्हीं की तरीके की एडवर्टीजमेंट दिखानी है, आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स दिखा सकते हैं। Moreover, the advertiser has the advantage of selecting audience by place to meet its different needs, और even वहाँ पे वो डिसाइड भी कर सकते हैं कि किस थिएटर में कौन सी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑडियंस दे हैव। तो ये कुछ मेरिट्स हैं। नेक्स्ट मेरिट है द मीडियम हैज़ द स्पेशल फीचर ऑफ मास पब्लिसिटी because a theater can accommodate 300 to 400 persons per show. यानी एकदम से ज़्यादा पब्लिसिटी की जा सकती है क्योंकि 300 से 400 लोग आपकी एडवर्टीजमेंट को उसी टाइम पर देख रहे हैं। फिल्म एडवर्टाइजिंग कट्स अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज एंड रीचेस द ऑडियंस फास्टर, सो द मैसेज एक्सपोज्ड इज नॉट वेस्टेड। यानी इसमें लिटरेसी का कोई काम नहीं है क्योंकि ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं होता, विजुअल और ऑडियो की वजह से वो इलिटरेट पीपल को भी और अलग अलग लैंग्वेज के लोगों को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में नॉट बी अपीलिंग टू द रूरल पॉपुलेशन बट फिल्म्स आर रिलायबल मीडियम देयर। यानी जो गांव के लोग होते हैं वो ज़्यादातर मैगजीन या न्यूज़पेपर्स में इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन फिल्म में अगर कोई उनको इस तरीके की मूवी के बीच में या पहले एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। Demerits: this advertising is closely and the message is usually ignored. This advertising is costly and the message is usually ignored by the people because before the start of the film, during the interval when the advertisement is shown, only few people are present in the theater. तो ये एक डीमेरिट भी है। वैसे तो जो लोग बैठे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देते हैं कि चलो अभी मूवी स्टार्ट होने वाली है तो देख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जब तक मूवी के थिएटर में आते ही नहीं, जब तक स्टार्ट नहीं होती, कि इंटरमिशन में भी बाहर चले जाते हैं, तो यू कैन लूज दोज पीपल। फिल्म एडवर्टाइजिंग इज कॉस्टली एंड सो ओनली फ्यू कैन यूज दिस मीडियम। यानी ये थोड़ी सी महंगी होती है, इसीलिए सारी कंपनीज उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। Moreover, it lacks the flexibility and timeliness and its effectiveness cannot be measured. और ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि रिजिडिटी आ जाती है। जितनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है
और जितने लोगों को दिखानी है उतनी ही दिखाई जाती है और जल्दी से चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो इजीली मेजर नहीं की जाती कि कितने लोगों को उसका असर पड़ा या कितनों को नहीं पड़ा। तो ये कुछ डीमेरिट्स हैं फिल्म एडवर्टाइजिंग के। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। दिस इज आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर यानी जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको डिस्प्ले पे कुछ एडवर्टीजमेंट्स दिखती है इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा। उसको हम आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नाम देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द पोजीशन और इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। इसको हम इनडायरेक्ट या पोजीशन एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। दिस मीडिया रीचेस पीपल व्हेन दे आर आउटडोर्स, यानी जब आप घर पर नहीं हैं, जब आप तक पहुंचने का ये एक जरिया है। और ट्रैवलिंग एंड नॉट व्हेन दे आर एट होम और ऑफिस, या तो आप बाहर हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। Here the advertising message is not delivered to the audience like in print or the broadcast media, but it is placed in a strategic location where it is exposed to the audience on the move। यानी ये एक एक करके ऑडियंस तक पहुंचाई नहीं जाती। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, प्रिंट है, तो एक एक करके अपने ऑडियंस तक पहुंचते हैं खुद। लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी लोकेशन पे लगा दिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निकलते हुए वहाँ से उसको देख सकें। This media catches the attention of people within a split of second. It has the power to grab the attention of the people because it is strategically located। यानी कोई ऐसी जगह पे होगी जहाँ पे आपकी नज़र जाएगी ही जाएगी। Its effectiveness can be seen from the fact that 97% of the total adult population moves outdoors every day। यानी 97% एडल्ट ऐसे हैं जो रोज घर से बाहर जाते हैं। तो इसीलिए कभी ना कभी तो उनकी नज़र पड़ेगी ही, कभी ना कभी तो दे वुड गेट अवेयर अबाउट दैट प्रोडक्ट। पोस्टर्स, इसमें क्या क्या आता है? पोस्टर्स, पेंटेड डिस्प्लेज, इलेक्ट्रिकल साइंस, ट्रैवलिंग डिस्प्लेज। ट्रैवलिंग या ट्रांजिट डिस्प्ले आपने देखा होगा, जैसे मेट्रो है या फिर किसी ऑटो रिक्शा के पीछे ऐड दे रखी है। एंड स्काई राइटिंग। स्काई राइटिंग इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है, जिसमें कोई हेलीकॉप्टर के थ्रू वाइट कलर से स्काई में लिखा जाता है। तो इंडिया में इतना है नहीं, बट दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। या फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े बलून लगे होते हैं जिस पे एडवर्टीजमेंट की जाती है। पहले पोलियो के होते थे बड़े बड़े बलून, उस पर लिखा होता था कि ये वाले दिन पोलियो की दवाई पिलाई जाए। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अब इसके मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। दिस मीडियम मेंटेन्स the continued appeal for a longer period of time and is open to all classes of the society without any expenditure on their part. Through frequency and repetition, it can achieve the penetration। यानी यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
जैसे आपने अगर टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट दी या रेडियो पे दी, तो उसमें तो आपको थोड़े-थोड़े दिनों में पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि वो दोबारा डिस्प्ले की जा सके। लेकिन एक बार आपने ये वाली आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो फिर उस पे बार-बार पैसे खर्च नहीं करने। हाँ, उसका थोड़ा बहुत रेंट आपको देना पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे आपको खर्च नहीं करना। लोग खुद जितनी बार वहाँ से जाएंगे उतनी बार एक्सपोज होंगे। तो नाउ इट इज देयर विद द ऑडियंस कि वो कितनी बार वहां से गुजरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मीडियम हैज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू द एरिया, टाइम एंड इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। इट possesses geographical flexibility, permitting the promotion of products in the defined areas of market। यानी आपको जियोग्राफिकल फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि इस एरिया में अगर इस प्रोडक्ट की नीड ज़्यादा है या कोई लोकलाइज्ड मार्केट है, तो आप वो बिल बोर्ड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और वहाँ के जो जियोग्राफिकल एरिया के लोग हैं, एक डिफाइंड एरिया के लोग उस पर एक्सपोज होंगे। नेक्स्ट है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग हैज़ अ वैरायटी ऑफ मीडिया व्हीकल्स टू कैरी द मैसेज। Buying space is not really difficult because there is a continuous growth in the city, highways, vehicles and traffic that provides inbuilt additional space। यानी इसमें कभी स्पेस की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि दिन ब दिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंट्री में। तो इतने ही हाईवेज बन रहे हैं, इतने ही व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग ओनली सर्व्स एज ओनली रिमाइंडर। इट रिमाइंड्स द व्यूअर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज so advertised. The message cannot be long as there is a limited space, a moving audience and the changing market continues. It can therefore act best as the supplementary media। यानी आउटडोर अपने आप में एक स्टैंड अलोन मीडिया नहीं हो सकता, बल्कि एक रिमाइंडिंग मीडिया हो सकता है, क्योंकि लोग आते जाते इतनी जल्दी ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको ऑलरेडी थोड़ा आइडिया होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, और जब ये ज़्यादा कारगर है। अगर आप किसी नए प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करोगे तो हो सकता है लोगों की अटेंशन इतनी जल्दी इस पर ना आए, तो ये एक इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द रिजल्ट ऑफ आउटडोर मीडिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने देखा। रेडियो, टेलीविज़न, मैगजीन, न्यूज़पेपर, इन सब की, या फिर फिल्म एडवर्टाइजिंग की भी बात करूं, तो हम कहीं ना कहीं काउंट कर सकते हैं कि कितने लोगों ने देखा रीच के थ्रू। लेकिन आप आउटडोर मीडिया को काउंट नहीं कर सकते कि कितने लोग वहां से गुजरे या कितनों की नज़र पड़ी। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होता है ये पता लगाना कि क्या इसका रीच था या उसको इवैल्यूएट करना। ये दो डीमेरिट्स हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, फिल्म एडवर्टाइजिंग और आउटडोर एडवर्टाइजिंग से। एक क्वेश्चन है कि ट्रेड जर्नल क्या होता है। ट्रेड जर्नल यूजुअली जैसे कुछ बिजनेसमैन के पास आता है, जब
वो अपने बिजनेस में कुछ, तो वो उसमें उन्हीं की इंफॉर्मेशन, या एक ट्रेड जर्नल पूछा है। सो ट्रेड जर्नल, जब बिजनेसमैन के पास कुछ जर्नल्स आते हैं ताकि वो डील कर सकें अलग अलग सप्लायर्स से, तो उसमें उनके कोटेशंस होते हैं, कितना मटेरियल सप्लाई किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके की मैगजीन जो होती हैं उनको ट्रेड जर्नल्स कहा जाता है। टेन ईयर्स से क्वेश्चन देख लो, आंसर पे रिलाई मत करना। पीपीटी लास्ट में शेयर हो जाएगी। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास के बारे में बात करती हूँ। चलिए अब हम दोबारा डिस्कस करते हैं। एसओएल में मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, वो बताएंगे कि आपकी क्लास है या नहीं है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग है ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। These are also known as traveling displays। तो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग और ट्रैवल एडवर्टाइजिंग एक ही बात है। It stands for all types of advertising signs or displays used in trains, buses, cars, autos, trucks, etc. तो यानी कोई भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के पीछे या उसके अंदर, आपने देखा होगा मेट्रो पे एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, अंदर भी एडवर्टीजमेंट होती है, बाहर भी बसेस में होती है, ऑटोज में होती है, कार्स में होती है, कैब्स पे होती है एडवर्टीजमेंट। सो वो सारी ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग के अंदर ही आएगी। एंड जो भी टर्मिनल्स और स्टेशंस पे होती है, सो दैट वुड आल्सो कम अंडर द ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग। कि आप किसी स्टेशन पे गए, एयरपोर्ट पे गए, वहां पर कोई ऐड की गई है, वो भी ट्रैवल या ट्रांजिट एडवर्टाइजमेंट के अंडर आएगा। मेरिट एंड डिमेरिट्स, it is economical and can cover the wide geographical area.
क्योंकि वहाँ पे भी लोगों का काफ़ी एक्सपोजर होता है और लोग यूजुअली वेट कर रहे होते हैं अपने व्हीकल के लिए या फिर व्हीकल के अंदर होते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो दे पे अटेंशन, इसीलिए वाइड जियोग्राफिकल एरिया भी वो कवर कर लेती हैं। जैसे अगर मेट्रो में किया है तो मेट्रो यहाँ से लेके अगर सपोज हुडा सिटी सेंटर तक जा रही है तो वहाँ तक के सारे लोगों को सारे लोग एक्सपोज होंगे उसके लिए। तो दिस इज वन मेरिट। इकोनॉमिकल है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। दिस मीडियम कैन रीच पेडेस्ट्रियंस एंड ट्रैवलर्स एंड सो हैज़ अ हाई रीडरशिप एबिलिटी। मैंने आपको बताया कि जो लोग चल रहे हैं, आते जाते लोग हैं, ट्रैवलर्स हैं, उन तक इजीली पहुंच सकते हैं और उनकी ज़्यादा रीडरशिप एबिलिटी होती है। क्योंकि हम जब बोर हो रहे होते हैं, मेट्रो में होते हैं, तो यूजुअली पढ़ ही लेते हैं क्या है। Demerits: smallness in size and the problem of space availability are the limitation. तो कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन लिमिटेड स्पेस में नहीं दे पाते, जो इसका एक डीमेरिट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट। दिस इज द एडवर्टाइजिंग मीडियम wherein the advertiser sends messages directly to the target customers by mail। यानी मेल करके, मैं ईमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मेल की बात कर रही हूँ। तो मेल के थ्रू जब जैसे आपके पोस्ट बॉक्स में कोई मेल आया, कोई पैम्फलेट आया है, किसी चीज़ की एडवर्टीजमेंट के लिए आया है, तो वो डायरेक्ट मेल कहलाती है। द मैसेज में बी मेल्ड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। कैसे कैसे वो मेल किया जा सकता है? वो लेटर की फॉर्म में हो सकता है, वो सर्कुलर की फॉर्म में हो सकता है, वो ईमेल की फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है। यानी फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ले जा सकते हैं। कैटलॉग्स हो सकते हैं, फोल्डर्स हो सकते हैं, ब्रोशर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। मेरिट्स क्या है? इट इज इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है, एंड द मोस्ट पर्सनल एंड सेलेक्टिव मीडिया। यानी यहाँ पे आप एक बंदे को टारगेट कर रहे हो तो उसकी कभी कभी पर्सनल नेम से भी आता है, जैसे आपका फर्स्ट नेम लिखा होगा और फिर उसके बाद मैसेज लिखा होगा, तो ये पर्सनल और सेलेक्टिव मीडिया है। इट रीचेस ओनली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड हैज द मीडियम लास्टिंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जब आपको पर्सनली कोई चीज भेजी जाती है तो आप उस पे, सॉरी मैं दूसरे पॉइंट पर आ गई आई गेस। इट रीचेस ओनली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड हैज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट इन द सर्कुलेशन। यानी ये लोगों पे डायरेक्टली पहुंचता है। तो पहले हम ऑडियंस का पता लगाते हैं कि कौन इंटरेस्टेड हो सकता है और फिर ही उनको इसकी जानकारी देते हैं, तो इसमें वेस्टेज जो है वो कम होती है। The advertisement copy can be very flexible and can provide detailed information about the product or service, creating a lasting impression। यानी जब कोई चीज़ आपके घर आएगी तो आप उसको खोल लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसका ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन होता है। Its effectiveness is measurable and it has maximum personal appeal। तो जिस चीज़ में ज़्यादा पर्सनल अपील होती है उसको ज़्यादा अच्छे से हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 10 लोगों को या 20 लोगों को भेजा है और अब उनमें से कितने लोगों ने खरीदा है, तो उसका इफेक्टिवनेस को हम इजीली मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। द मैसेज हैज़ टू बी ब्रीफ एंड कैन नॉट बी कॉन्फिडेंशियल। यानी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकता मैसेज, और उसको छोटे में ही लिखना ज़रूरी है। बहुत बड़ी कहानी लिख के भेजेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा। सो इट मे नॉट टर्न आउट टू बी अट्रैक्टिव एज एक्सपेक्टेड। तो और उसमें इतने पिक्चर्स वगैरह यूज़ नहीं होते, ऑडियो यूज़ नहीं होते, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एन अप टू वर्ड्स मेलिंग लिस्ट as continuous changes are required. So business firms are now issuing private journals to inform customers about their new arrivals periodically. For example, Food World has its private journal
द फूड होल्डर, यानी मेलिंग लिस्ट मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि लोगों का एड्रेस चेंज हो जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने जर्नल्स बना लेते हैं और जर्नल्स को सर्कुलेट कर देते हैं कि एक एक बंदे को भेजने की बजाय उसके नाम से वो यूजुअली वैसे ही सर्कुलेट कर लेते हैं ताकि जो भी पढ़ेगा उसको उनके न्यू प्रोडक्ट्स की जानकारी हो सके। The last demerit is this medium has only limited coverage and is useful for advertising to a small and known group। यानी इसकी लिमिटेड कवरेज है, कितने लोगों को आप नाम से उनके एड्रेस पे भेज पाएंगे, ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जब आपको किसी छोटे से एरिया में ही एडवर्टीजमेंट करनी हो तो वहाँ पे ये तो कारगर है, अदरवाइज इट कैन नॉट सर्व द मास पीपल। समझ आया? अब नेक्स्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग स्पेशलिटीज और गिफ्ट एडवर्टाइजिंग। This is a medium that employs the use of useful articles known as advertising specialities or gift novelties, which are imprinted with the name, address, and the sales message of the advertiser. For example, pen, keychains, डायरीज, ashtrays, etc. तो जब आप कुछ किसी तरीके का गिफ्ट लोगों को देते हैं, जैसे सैंपल दे दिया कोई, या पेन दे दिया, या कोई की चेन दे दिया और उस पर अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो वो गिफ्ट एडवर्टीजमेंट कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा शादियों में वो आती है, भाजी आती है, उसके साथ की चेन्स होते हैं जिसपे नाम लिखा होता है भाजी वाले का। सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गिफ्ट एडवर्टाइजिंग, जिसमें किसी पेन या की चेन या डायरी या इस तरीके की चीज़ों पे अपनी एडवर्टीजमेंट की जाती है। These items act as gifts when distributed to the selected audience free of cost or obligation. The advertiser hopes strongly that the recipient is likely to be influenced favorably to buy in future। यानी जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो किस किस उम्मीद से देते हैं कि आगे चल के वो आपसे कोई सामान खरीदेंगे। As he is reminded of the company every time he or she looks at the gift। जब भी आप उस गिफ्ट की तरफ देखते हैं तो आपको उसका नाम याद आ जाता है। इस तरीके से आप उस कंपनी से एसोसिएटेड रहते हैं। मेरिट क्या है कि उसकी रिमाइंडर वैल्यू ज़्यादा अच्छी है, जितनी बार भी आप पेन यूज़ करेंगे, की चेन यूज़ करेंगे, आपको याद आएगी। डीमेरिट्स क्या है कि इट वर्क्स आउट मच कॉस्टलियर देन अदर मीडियम्स एंड accommodates only limited information। यानी अब आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं महंगा
Yeah guys, I lost the connection. We were discussing upon the demerits. तो जब आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसमें पैसा लगता है जो कॉस्टलियर पड़ता है आपको किसी और मीडियम से। तो यहाँ पे चाहे रिमाइंडर वैल्यू ज़्यादा है लेकिन आपकी कॉस्टलियर भी है, ये आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। नेक्स्ट है विंडो डिस्प्ले। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ वर्ड डिस्प्ले इज अरेंजिंग समथिंग फॉर व्यू। यानी कोई भी चीज़ डिस्प्ले पे लगाते हैं, हम देखते हैं जैसे आप किसी मॉल में गए तो वहाँ पे भी डिस्प्ले में इसलिए चीज़ें लगाई हुई होती हैं ताकि उनकी एडवर्टीजमेंट हो सके और आप उसे खरीद सकें। Therefore, display advertisement is a systematic arrangement of samples of saleable products to catch the imagination and attention of people. Every retailer puts certain selected products in glass window in attractive styles in front of the shop. Similarly, manufacturers and the wholesalers maintain big showrooms in the main markets to advertise their products. तो आपने देखा होगा कि मेन मार्केट में शॉप होने का क्या फ़ायदा होता है कि वहाँ पर लोग ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं और जिन लोगों को नहीं खरीदना वो भी खरीदने आ जाते हैं। आपने देखा होगा डिस्प्ले में अगर आपको कोई कुर्ती पसंद आ गई, कोई शर्ट पसंद आ गई तो आप जाकर ले लेते हैं। अगर वो सब कुछ अंदर रखेंगे, डिस्प्ले में नहीं लगाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। तो दैट इज़ विंडो डिस्प्ले। और ये यहाँ पर वी आर डन विद द टाइप्स ऑफ मीडिया। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टाइप्स ऑफ मीडिया? नहीं है तो फिर हम मीडिया शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ेंगे। Rahul Upadhyay, yes, it is impossible to measure the result in outdoor media because you would not be able to know that how many people actually paid attention to your hoarding or your billboard. ट्रांजिट एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। आउटडोर में एक स्टैटिक स्टेज पर होती है, यानी एक जगह लगा दी वो वहीं रहेगी। ट्रांजिट में घूमती फिरती रहती है या फिर जहाँ पे लोग आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वहाँ पर वो एडवर्टीजमेंट की जाती है। हाँ, आपके सिलेबस में पर्सनल सेल्समैनशिप भी है जो कल से या नेक्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगा। ये पीपीटी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कल आपके साथ, मैं आज दोबारा कर दूंगी। सेकेंड डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेल। मैं डायरेक्ट मेल पर जाके देखती हूँ सेकेंड डीमेरिट क्या था। It is difficult to prepare and open to an up to words mailing list। यानी जब आप डायरेक्ट मेल करते हैं तो आपके पास सबके एड्रेस होने ज़रूरी हैं और ये बहुत मुश्किल है कि सबके एड्रेस आपके पास एट द सेम टाइम हो और वो ठीक भी हो, क्योंकि थोड़े थोड़े दिनों में ये एड्रेस चेंज भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि सबको डायरेक्ट मेल किया जाए। और उससे बचने के लिए अब सबको डायरेक्ट मेल जो किया जाता है वो नेम के साथ किया जाता है।
सबका नेम ठीक हो, सबका ईमेल, सबका एड्रेस ठीक हो, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेंटेन करना। इसीलिए कुछ लोग सिर्फ जर्नल्स बना लेते हैं और उनको ऐसे ही सर्कुलेट कर देते हैं जिसपे कोई नेम नहीं होता, वो सबको सेम मैगजीन टाइप का चला जाता है। ये एक डीमेरिट था डायरेक्ट मेल का कि सबके एड्रेस और नेम को कलेक्ट करना और मेंटेन करना इज अ बिट डिफिकल्ट। अभी 2:30 तक तो देखो, मेरी बात तो हो गई एसओएल में। वो कह रहे हैं कि अभी हम देखते हैं कि कौन सा ग्लिच है, क्यों क्लैश हो रही है। तो अभी 2:30 तक तो अटेंड करो क्लास, जब तक कॉल आ जाएगी मेरे पास। नेक्स्ट हम करेंगे मीडिया शेड्यूलिंग। Media scheduling decisions are the decisions about the timing, continuity and the size of ad. यानी किस टाइम पे ad दिखाई जाएगी। सपोज पहले मैंने मीडिया डिसाइड कर लिया कि मुझे किसके थ्रू अपनी एडवर्टीजमेंट दिखानी है। सपोज मैंने चूज किया टेलीविजन, कि टेलीविजन पे मैं ऐड दूंगी। अब मुझे डिसाइड करना है मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग में क्या होगा, टाइम, पहले टाइम डिसाइड करूंगी किस टाइम मेरी ऐड आएगी। फिर मैं कंटिन्यूटी देखूंगी, यानी एक दिन में 4 बार आएगी या 40 बार आएगी, फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी। और फिर साइज देखा जाएगा कि 1 मिनट की ऐड होगी या 30 सेकंड की ऐड होगी। तो ये मीडिया शेड्यूलिंग कहलाता है। मीडिया शेड्यूलिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे कुछ लिखी हुई है, स्ट्रैटेजीज जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहली है बर्स्टिंग स्ट्रैटेजी। In this strategy, advertising will be done heavily during a particular period of time according to the plan. For example, a company when introduces a new product in a new market with a specified period of time, this strategy specially is used by the company. यानी आपने देखा होगा किसी किसी मैच के दौरान या किसी सीजन में, या बहुत गर्मी हो रही है जब, तो एकदम से किसी चीज की बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स आती हैं। हर 2 मिनट में उसकी एडवर्टीजमेंट आ रही है, हर 2 मिनट में। दैट इज नोन एज द बर्स्टिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बहुत कॉन्टिन्यूटी में एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर है बर्स्ट हियॉटस फ्लाइट स्ट्रैटेजी। इट इज स्पेशली यूज्ड फॉर सीजनल प्रोडक्ट्स. During the busy season, the advertiser will make large-scale advertising, and during the off-season, the advertiser may not spend on advertising. यानी ये सिर्फ सीजनल एडवर्टीजमेंट्स के लिए है। जैसे विंटर सीजन में वूलन क्लोथ्स की एडवर्टीजमेंट आएगी, या फिर आपने देखा होगा फेयर एंड लवली की एड जो आती है, विंटर में विंटर वाली की आती है, समर में समर वाली की आती है। तो उसका मतलब है बर्स्ट हियॉटस फ्लाइट स्ट्रैटेजी, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उसकी एडवर्टीजमेंट दी जाए, ऑफ सीजन में ना दी जाए। नेक्स्ट है फ्लाइट स्ट्रैटेजी. This strategy is used for the product whose selling remains uniform throughout the year and advertising schedule is distributed throughout the year. यानी जो पूरे साल सेम तरीके की एडवर्टीजमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सीजन ज्यादा उस सीजन कम, पूरे साल यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, उसको फ्लाइट स्ट्रैटेजी कहा जाता है. पल्सिंग स्ट्रैटेजी. In pulsing strategy, regular advertising will be made for 2 or 3 weeks, followed by the low advertisement for a short. इसलिए जैसे पल्स चलती है हार्ट की, पहले तेज, फिर काम, तेज काम, तेज काम, तेज काम. ऐसे ही पल्सिंग स्ट्रैटेजी है कि कुछ दिन के लिए बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जाएगी, फिर थोड़ी कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम. Alternating strategy. This strategy advertiser advertises his goods and services every alternate month. यानी हर मंथ एक छोड़ के एक एडवर्टीजमेंट की जाती है. Steady strategy. In this strategy, the advertiser spends a fixed amount of money every month
इट कैन बी ऑफ एनी अमाउंट विच इज बीन डिसाइडेड फॉर द एडवर्टीजमेंट, यानी हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट को स्पेंड किया जाता है एडवर्टीजमेंट के लिए. इट इज मोर लाइक द यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी और द फ्लाइट स्ट्रैटेजी. नेक्स्ट है स्टेप डाउन स्ट्रैटेजी. Under this strategy, as the season approaches, there is a heavy advertising. Advertising is reduced when the season starts declining होना चाहिए. For example, when rainy season approaches, a lot of companies give advertisements related to the rainy shoes. ये seasonal advertisement की तरह ही है. Step down strategy भी उसको कह सकते हैं कि धीरे धीरे कम कर देना. जैसे अगर एकदम से कोई सीजन आया तो उसमें ज्यादा रेनी शूज और सैंडल्स और अम्ब्रेला की एडवर्टीजमेंट की गई, और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सीजन कम होता गया उसकी एडवर्टीजमेंट को भी कम कर दिया गया. वहां पर सिर्फ सीजन में की जाती थी, यहाँ पे सीजन में भी की जाती है, ऑफ सीजन में भी, लेकिन ऑफ सीजन में कम की जाती है और सीजन में ज्यादा की जाती है. और लास्ट है टीजर स्टेप अप स्ट्रेटजी. इन दिस स्ट्रेटजी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट्स ऑन लो स्केल व्हेन द सीजन बिगिंस. As the season picks up, slowly advertisement increases and reaches its peak. For example, products like AC, cooler, etc. Advertisement starts with a low scale when the summer season begin. ये उसका उल्टा है. स्टेप डाउन स्ट्रेटजी में पहले आप एकदम से ज्यादा करते हैं एडवर्टीजमेंट और धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पर आप धीरे धीरे थोड़ा कम करते हैं और फिर बाद में पीक पर जाते हैं. तो ये दोनों का मतलब सेम है, पर्पस सेम है, बस यहाँ पे आप ज्यादा स्टार्ट करते हैं और कम पर आ जाते हैं, यहाँ से कम से स्टार्ट करके ज्यादा पे चले जाते हैं, बस ये डिफरेंस है. मेथड्स वाली स्लाइड मैंने छोड़ी नहीं है, वो यही सारे मेथड्स लिखे हुए थे, बस नाम लिखे हुए थे, इसलिए मैं एक एक करके सारे मेथड्स पर ही आ गई. वहां पे बस इनके नाम लिखे हुए हैं जितने भी मेथड्स मैंने कराए हैं. ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट का मतलब है जब आप कोई कहीं जा रहे हैं और आपने देखा किसी व्हीकल पे कुछ लिखा हुआ है, या व्हीकल के अंदर लिखा हुआ है, बस के अंदर है, मेट्रो के अंदर है, या स्टेशन पर है, वो ट्रांजिट एडवर्टीजमेंट कहलाती है. ट्रैवल करने के दौरान कोई एडवर्टीजमेंट में आप एक्सपोज होते हैं. फ्लाइट स्ट्रैटेजी जिसमें आप यूनिफॉर्मिटी बनाए रखते हैं, आपकी सेम एडवर्टीजमेंट आती है थ्रू आउट द ईयर. स्टडी स्ट्रैटेजी और फ्लाइट स्ट्रैटेजी दोनों सेम ही है. इसमें भी आप एक अमाउंट रख लेते हैं और उतना अमाउंट स्पेंड करते हैं हर महीने. बस ये हो सकता है कि कभी जैसे ज़्यादा महंगी हो गई या ज़्यादा सस्ता हो गया, तो आप अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कि वॉल्यूम पे. फ्लाइट स्ट्रैटेजी में वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि आपको इतना एडवर्टीजमेंट करना ही करना है. स्टडी में पैसे पे डिपेंड करता है कि इतना पैसा आपने रखा हुआ है इस मंथ के लिए, उतना ही लगाना है.
ऑल्टरनेट स्ट्रेटेजी में आप एक महीने ज्यादा करते हैं, एक महीने एडवर्टीजमेंट करते हैं, दूसरे महीने नहीं करते, फिर तीसरे महीने करते हैं, चौथे महीने नहीं करते। ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी। पल्सिंग में आप थोड़े दिन ज्यादा करते हैं, फिर थोड़े दिन कम करते हैं, फिर थोड़े दिन ज्यादा करते हैं, फिर थोड़े दिन कम करते हैं। दैट इज पल्सिंग स्ट्रेटेजी। टारगेट मार्केट और टारगेट ऑडियंस सेम है। टीजर स्टेप अप स्ट्रैटेजी में आप पहले थोड़ी बहुत एडवर्टीजमेंट देना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद जैसे ही सीजन आता है बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने लग जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
Okay, our next topic is advertising agency. Advertising agency क्या होता है? It is just like a tailor. टेलर क्या करता है? पहले मेजरमेंट्स लेता है, उसके बाद क्लॉथ डिसाइड करता है कि ठीक है रॉ मटेरियल क्या होगा, फिर थ्रेड्स देखता है, उसके हिसाब से ड्रेस को शेप देता है और उसको फाइनली स्टिच करता है और डिलीवर कर देता है कस्टमर को। ये काम होता है टेलर का। सिमिलरली एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी एक टेलर है जो अपने क्लाइंट के लिए एडवर्टीजमेंट बनाती है। उसके लिए उन्हें जो भी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं कि क्या कंटेंट होना चाहिए, कौन सेलिब्रिटी होना चाहिए, क्या मीडिया होना चाहिए, क्या मीडिया शेड्यूलिंग होनी चाहिए, सारा काम क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसी करके देती है, यानी उनके लिए एडवर्टीजमेंट बनाकर देती है। The work of a tailor is to collect the raw material, find matching threads, cut the cloth in the desired shape, finally stitch the cloth and deliver it to the customer. Advertising agency is just like a tailor. It creates the ads, plans how, when and where it should be delivered, and hands it over to the client. The advertising agency is mostly not dependent on any organizations. That means they work independently. Okay? These agencies take all the efforts for selling the product of the client. यानी वो सारे efforts करते हैं ताकि client का product बिक जाए. They have a group of people, experts in their particular fields, thus helping the companies or organizations to reach their target audience, the customer, in an easy and simple way. So they have a group of people जो अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ डिज़ाइनिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ मीडिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ कंटेंट राइटिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उन एक्सपर्ट्स को बुलाकर वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस यानी क्लाइंट्स के लिए एडवर्टीजमेंट बनवाते हैं ताकि वो कस्टमर्स तक पहुंच सके। The first advertising agency was William Taylor in 1786, यानी जो फर्स्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी वो 1786 में आई थी, followed by the James White in 1800 in London and Rynell and Sons in 1812. इतने पहले से एजेंसीज का प्रचलन है। Now what is the role of advertising agencies? The role of advertising agency, creating an advertisement on the basis of information gathered about the product. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में पहले लेना उनका रोल है कि भाई किस प्रोडक्ट के बारे में हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, हम क्या दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को लेना, doing research on the company and the product and the reaction of the customer. फिर देखना कि कस्टमर उसके बारे में क्या सोचते हैं, कंपनी की क्या इमेज है और प्रोडक्ट की क्या इमेज है। Then planning for the type of media to be used. फिर वो डिसाइड करते हैं कि क्या कौन सा मीडिया यूज किया जाएगा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, depending upon the type of audience they have. उसके बाद डिसाइड करेंगे कब और कहाँ कैसे मीडिया शेड्यूलिंग की जाए, और फिर लास्ट में टेकिंग द फीडबैक्स फ्रॉम द क्लाइंट्स एज वेल एज द कस्टमर एंड देन डिसाइडिंग द फर्दर लाइन ऑफ एक्शन। यानी एक बार एडवर्टीजमेंट बनाने के बाद वो फीडबैक लेंगे कस्टमर्स से, और पहले तो क्लाइंट से लेंगे कि भाई आपको कैसी लग रही है, ठीक लग रही है, सेटिस्फाई हो या नहीं हो। उसके बाद वो कस्टमर्स से लेंगे जब एक बार
रिलीज हो जाएगी और उसके बाद अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो करेंगे। तो ये है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस। क्या फायदा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के। दी एजेंसीज आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, यानी जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं उनको पता होता है कि भाई कैसे एडवर्टीजमेंट बनानी है, कैसे मीडिया डिसाइड करना है, कैसे कस्टमर डिसाइड करने हैं, तो वो अपने एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं। उनके पास अलग अलग फंक्शन करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि कॉपीराइटर्स, आर्ट डायरेक्टर्स, प्लानर्स एटसेट्रा। The agencies make optimum use of these people, their experience and their knowledge. यानी एजेंसीज को पता है कि किस तरीके के लोगों को कहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट, they work with an objective and are very professional, यानी वो अपने काम के लिए बहुत ही लॉयल होते हैं, प्रोफेशनल्स की तरह काम करते हैं। Hiring them leads in saving the cost up to some extent, यानी अगर आप खुद ही सारा काम करोगे, खुद ही एडवर्टीजमेंट बनाओगे, तो आप एडवर्टीजमेंट पे फोकस करोगे या फिर अपने प्रोडक्ट पे, और आपकी एक्सपर्टीज भी नहीं है इसमें, इसीलिए इट इज सजेस्टेड टू गेट दिस सर्विस आउटसोर्स्ड, ताकि आपका जो काम है आप उस पे फोकस करो और एडवर्टीजमेंट जो उसके एक्सपर्ट है उनको बनाने दो। हो सकता है आपकी कॉस्ट भी कम आए। Now we'll be talking about the types of advertising agencies. There are 5 types of advertising agencies. The first is full service agency. Full service agency का क्या मतलब है? सारी सर्विसेज शुरू से लेके आखिर तक जितना भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड काम होगा वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी ही करेगी, आपको खुद कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट है लार्ज साइज एजेंसीज। ये जो फुल सर्विस एजेंसी होती हैं वो लार्ज साइज्ड होती हैं, यानी जब सारा काम ये खुद कर रही हैं तो दे आर ह्यूज इन साइज। नेक्स्ट, डील्स विद ऑल स्टेजेस ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी जितने भी काम होते हैं एडवर्टीजमेंट के, बनाना है, मीडिया को डिसाइड करना है, मीडिया से कनेक्ट करना है, सेलिब्रिटी से कनेक्ट करना है, सेलिब्रिटी को पैसा देना, सारा काम आपका फुल सर्विस एजेंसी करती है। डिफरेंट एक्सपर्ट पीपल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जब ये ऑलरेडी लार्ज होती है साइज में तो हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट एक्सपर्ट्स होते हैं इनके। Starts work from gathering the data and analyzing and ends on the payment of bills to the media people. यानी शुरुआत कैसे होती है, आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर के बारे में रिसर्च करते हैं कि कौन आपके टारगेट ऑडियंस है, कैसे उन तक पहुंचा जाए, और एंड किससे होता है, जब ये फाइनली मीडिया को पे कर देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, यानी बीच के सारे काम यही करते हैं। ये है फुल सर्विस एजेंसी। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एजेंसीज। इंटरैक्टिव एजेंसीज, दे आर मॉडर्नाइज्ड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर यूज्ड। यहाँ पे मॉडर्नाइज्ड मोड्स जो हैं कम्युनिकेशन के यूज किए जाते हैं, यानी ये सारी सर्विसेज तो नहीं देते, लेकिन कुछ कुछ सर्विस के लिए, जैसे इंटरनेट सर्विस है या फिर आपको सोशल मीडिया पे सर्विस चाहिए, तो ये इंटरैक्टिव एजेंसीज होती हैं जो आपको थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं। यूजेस ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, सेंडिंग पर्सनल मैसेज ऑन द मोबाइल फोन्स। जैसे आपने बता दिया कि हमारे इतने लोग हैं, इनको मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करना है या मेल करना है,
तो इस तरीके के छोटे मोटे काम ये इंटरैक्टिव एजेंसीज करती हैं, यूजुअली ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में होती हैं। The ads produced are very interactive, having very new concept and very innovative. जो इनकी ये एजेंसीज होती हैं ये बहुत इंटरैक्टिव एड्स बनाती हैं, जैसे फेसबुक की पोस्ट बना दी आपकी या कोई गेम बना दिया आपके नाम का, तो ये नए नए कंसेप्ट लाके और इनोवेटिव तरीके से आपके एडवर्टीजमेंट को बनाते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिव बुटीक्स। वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एड्स, ये बहुत इनोवेटिव एड्स बनाते हैं, जैसे इंटरैक्टिव होती है इनकी भी बहुत इनोवेटिव होती हैं, लेकिन एक फर्क है कि यहाँ पे ये कोई और फंक्शन नहीं करते, सिर्फ ऐड बना के आपको दे देते हैं। मीडिया से बात आपको खुद करनी है, डिसाइड आपको खुद करना है, रिसर्च आपको खुद करना है, ये आपके लिए बस एडवर्टीजमेंट बना के दे देते हैं। ये स्मॉल साइज एजेंसीज होती हैं with their own copywriters, directors and creative people, यानी इनके खुद के कॉपीराइटर, डायरेक्टर और क्रिएटिव पीपल तो होते हैं, लेकिन ये स्मॉल साइज एजेंसीज होती हैं और ये थोड़ा बहुत काम करती हैं, थोड़ा बहुत आपको खुद करना पड़ता है। नेक्स्ट है मीडिया बाइंग एजेंसीज। ये क्या करती हैं, ये आपके लिए किसी टेलीविजन शो के बीच में, मूवी के बीच में और किसी न्यूज़पेपर में स्पेस आपको खरीद के देती हैं बस। सो बाइज प्लेस फॉर द एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स इट टू द एडवर्टाइजर्स, यानी पहले सपोज मैंने कोई शो आना है, उस शो के बीच के सारे स्लॉट मैंने खरीद लिए और फिर बाद में बाकी के एडवर्टाइजर्स को ज़्यादा पैसे में बेच दिए। ये होती है मीडिया बाइंग एजेंसी, यानी मुझे डायरेक्ट मीडिया में जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी किसी एजेंसी ने खरीद रखा होगा और वो आगे बेच देंगे, तो मैं उनसे खरीद सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा टिकट्स ब्लैक में बिकती हैं, तो अगर आप जाके किसी मूवी के 40 टिकट खरीद लो और फिर बाद में आगे थोड़े ज़्यादा रुपयों में बेच दो, अब लोगों को कन्वीनियंस रहेगा कि उनको वहाँ पे लाइन में लग के नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये फ़ायदा रहेगा कि थोड़े से ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके की मीडिया बाइंग एजेंसी होती हैं जो ऑलरेडी थोड़े स्लॉट खरीद लेती हैं और फिर बाद में लोगों को बेच देती हैं, एडवर्टाइजर्स को बेच देती हैं। सेल्स टाइम इन विच द एडवर्टीजमेंट विल बी प्लेस्ड, schedule slot at different television channels and radio stations, finally supervises or checks whether the ad has been telecasted at opted time or place or not, यानी इनका काम सिर्फ मीडिया शेड्यूलिंग से रिलेटेड होता है कि सही टाइम पे, सही जगह और सही फ्रीक्वेंसी में एडवर्टीजमेंट दी जा रही है या नहीं। और लास्ट है इन हाउस एजेंसी। इन हाउस एजेंसी होती है, जैसे मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं किसी और एजेंसी को हायर ना करके अपनी ही कंपनी में एक एडवर्टीजमेंट की एजेंसी खोल लूँ, कुछ लोगों को हायर कर लूँ कि ये सब मेरे लिए एडवर्टीजमेंट बनाएंगे, हम बाहर से नहीं बनवाएंगे, वो होती है इन हाउस एजेंसीज। एज गुड एज फुल सर्विस एजेंसी, क्योंकि सारी सर्विसेज खुद ही करते हैं आप। बिग ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर दीज टाइप ऑफ एजेंसीज विच आर बिल्ड एंड वर्क ओनली फॉर देम, यानी जो ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए ही काम करती है। दीज एजेंसीज वर्क एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर टाटा अपनी खुद की एजेंसी खोल ले तो उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनके इतने प्रोडक्ट हैं, उन्हें बाहर से एडवर्टीजमेंट नहीं बनवानी पड़ेगी, तो ये इन हाउस एजेंसीज होती हैं। And with this we are done with the advertising agency. Now let me come back to your screen if you have any question.
मीडिया बाइंग एजेंसी इलीगल नहीं है, क्योंकि वो भी पैसों में ही खरीद रहे हैं और ऐसा कुछ ब्लैक नहीं कर रहे हैं, बस कन्वीनियंस के लिए वो खरीद कर रखते हैं, तो इट इज नॉट इलीगल। ये सब आपको बुक में भी दे रखा है, बुक में से पढ़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली गूगल से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीपीटी मैं भेज रही हूँ, पहले आपकी क्वेरी ले लेती हूँ, फिर पीपीटी भेजूंगी। क्रिएटिव बुटीक, जिसमें बस आपको एड क्रिएट करके दी जाती है, मीडिया वगैरह का सारा डिसीजन आपको लेना है, रिसर्च आप ही को करना है, बस आपको एक एड बनाकर दे दी जाती है। लास्ट इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजिंग एजेंसी की कि उनको यूज करके आप अपने कॉस्ट पे सेव कर सकते हो। सपोज हर कंपनी अपनी खुद की एडवर्टीजमेंट बनाएगी, एडवर्टीजमेंट बनाने के लिए लोगों को हायर करेंगे, बनाएंगे, फिर मीडिया शेड्यूलिंग करेंगे, मीडिया से कनेक्ट करेंगे, ये सारे काम में उनकी ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। इससे अच्छा जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जिनका ये रोज का काम है, उनको ये काम दे दो ताकि आपकी कॉस्ट भी कम आए। इंटरैक्टिव में ज़्यादातर ऑनलाइन रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं, क्रिएटिव बुटीक्स में सारी तरीके की एडवर्टीजमेंट्स बनाई जाती हैं। आई होप आपके सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब मैं आपको दोबारा लिंक दे देती हूँ और बुक का नाम पब्लिश कर देती हूँ।
इंटरैक्टिव एजेंसी और क्रिएटिव बुटीक में यही डिफरेंस है कि क्रिएटिव बुटीक हर तरीके की एड्स बनाते हैं, इंटरैक्टिव एजेंसीज ज़्यादातर सोशल मीडिया और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स पे ध्यान देते हैं। काम दोनों का लिमिटेड होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी आकाश जी, वो बात हुई है आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास क्लैश जो हो रही है। अच्छा, तो फिर ये तो रोज का काम हो गया है, क्लैश होती है, या तो चलो मैं गुप्ता सर से ही बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, मैं बात कर लूँगी और आप मेरा ये अब एंड कर सकते हैं, क्लास हो गई है मेरी क्लास। या मेरी अभी एसवाल में बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि ये शेड्यूल उनको बनाकर आगे से मिला